Hello students, welcome to my YouTube channel. In today's video we are going to learn poem The Cherry Tree, which is written by Ruskin Bonds. And this poem, it appears in your 11th English poetry section. Poetry का section है section number 2. So this is the first poem from your section 2. In this video I have covered poem explanation along with the appreciation of the poem and figures of speech. So one thing I would like to say, like if you have these things new, like figures of speech, if you had not done in school days, so you will find these complete explanation on my YouTube channel Learn with BS. You can visit my YouTube channel. There you will find figures of speech part 1, part 2 with complete explanation and examples. And also if you are interested in more topics on grammar and writing skill, you will find it there. So I hope it will nothing be great for those who have already done, but for those who didn't have, you may find a little problem. So no problem, you can revise, you can have explanation. Even then, if you have any doubt, you can write in comment box. Okay, so before I read the poem, let me just tell you the meaning of certain words. Like cherry tree के बारे में poem है. तो how does the cherry, what exactly is cherry? I hope you would have had this fruit. If not, let me show you. This is how the cherry fruit looks. Okay, and this is the cherry tree. पोएम पढ़ रहे हो, अगर आपको वो पता ही नहीं होगा चेरी क्या है, तो इट्स ऑफ नो यूज. सो दैट इज़ वाई आई थॉट लेट मी जस्ट introduce you, let me just show you how does the cherry fruit look, how does the cherry tree look, and these are the flowers. Cherry tree में जो flowers आते हैं वो है, because all these things have been described in the poem. So if you don't know these things, तो you may not understand the poem better. Or there are certain words which are described or given in the poem which may be new to you, so I just thought of giving you the meaning along with pictures. So there it is mentioned that bees are drinking nectar from the flowers. तो जैसे आपने देखा है बीज कोई भी फ्लावर्स में से वो जो सेंटर में उनका जूस रहता है, दैट इज़ कॉल्ड नेक्टर, तो उसमें से ड्रिंक करती हैं, तो दैट इज़ मेंशनड. एंड देयर इज़ सर्टन टूल मेंशनड इन द पोएम, कटिंग टूल, जो ग्रास वगैरह को आपने देखा होगा काटने के लिए फार्मर्स यूज़ करते हैं, साइथ. तो दिस इज़ द टूल साइथ विथ विच दिस इज़ एक्चुअली फ्लेक्सिबल, दिस इज़ हैंडल. Okay, so with this they cut the unwanted grass or something. Okay, then certain birds which have been described, they sit on the cherry tree, that is finches. Finches is a type of bird. इनके भी अलग अलग टाइप रहते हैं. तो आई हैव गिवन दी बर्ड. आप सोचोगे फिंचेस कौन से बर्ड होते हैं, तो दीज आर द फिंचेस बर्ड्स. देन इट इज़ मेंशनड मून मॉथ. मून मॉथ क्या होता है? एक मॉथ एक छोटा सा इंसेक्ट होता है. दिस इज हाउ इट लुक्स. So these things have been mentioned in the poem. So I hope we can read the poem now. Okay. This poem is written by Ruskin Bond. So before we read the poem, let us read something about Ruskin Bond, the poet. He was born in Kasauli, Himachal Pradesh in 1934. Ruskin Bond has written hundreds of short stories, essays, novels, and more than 30 books for children. Okay, I hope you would have read in school days also रस्किन बॉन्ड की पोएम्स पढ़ी होंगी, पर उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, एसेज भी लिखे हैं. मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन ही इज़ रिटन. द रूम ऑन हिज फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ, रिटन when he was 17, received the John Levin Rice Memorial Prize in 1957. He has also published 2 volumes of autobiography, Scenes from a Writer's Life, and The Lamp is Lit, a collection of essays and episodes from his journal. In 1992, he received the Sahitya Academy Award for English Writing in India. He was awarded the Padma Shri in 1999. Ruskin Bond lives with his adopted family in Mussoorie, Uttarakhand. तो इमेजिन 17 ईयर्स में इन्होंने प्राइज़ मिली है, इनको इतना अच्छा लिखा है, इनकी बुक्स ऑटोबायोग्राफीज़ कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है. तो ही इज़ रियली अ वेरी गुड पोएट. कि अभी उनकी फैमिली के बारे में बताया है, जो मसूरी में रहते हैं, उत्तराखंड में है जो. अभी द पोएम चेरी ट्री इज़ अबाउट द पोएट्स एक्सटैसी ओवर अ ट्री. एक्सटैसी मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट का जिसमें मिक्सचर होता है, which he planted that took 8 years to grow. He's expressing his wonder at the ways of the nature and how the cherry blossoms are fragile and quick to fall. Fragile yani very delicate. The tree gives him immense joy as he can see the stars and the blue sky
through dappled green trees. अभी पोयम में एग्जैक्टली क्या है चेरी ट्री पोयम में, सो दैट इज़ जस्ट मेंशन इन ब्रीफ कि जो पोएट ने चेरी ट्री प्लांट किया था जिसको 8 years लग गए कंप्लीट ग्रो होने में, तो उनके मन में कितना, जैसे अपने बच्चे को हम देखते हैं बड़ा होते हुए, तो वैसे ही इनको फुल ऑफ एक्साइटमेंट जॉय था उसको बड़ा होते हुए देखना। और वो जो है चेरी जो है जब भी खिलता है इट इज़ वेरी फ्रेजाइल, बहुत डेलिकेट रहता है, जल्दी गिर जाता है, उसके पत्ते फूल गिर जाते हैं, तो थोड़ा डेलिकेट भी रहता है। तो वो सब उन्होंने इसका मिक्स उन्होंने फीलिंग अपना पोएम में बताई है। सो लेट अस स्टार्ट विथ द पोएम, एक्चुअल पोएम चेरी ट्री। 8 years हैव पास्ड सिंस आई प्लेस माई चेरी सीड इन द ग्रास। 8 साल हो गए, या जब भी 8 साल पहले मैंने चेरी फ्रूट के जो सीड्स हैं ग्रास में डाले थे। पोएट इज सेइंग 8 साल पहले मैंने चेरी जो फ्रूट है उसके सीड्स मैंने घास में डाले थे। मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन आई सेड एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड। मैंने सोचा था कि मेरे पास चेरी ट्री हो, इसके लिए मैंने सीड्स डाले थे, बट उसके बाद मैंने कम्प्लीटली भूल गया उसके बारे में कि मैंने चेरी ट्री लगाया है, मैं सो गया। एंड फॉरगॉट बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वन इज़ केयरिंग वेरी मच और नोइंग एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे। अभी चेरी जो ट्री है उसका अपना ही तरीका होता है ग्रो होने का। कोई ज़्यादा केयर करने वाला नहीं था, ज़्यादा नॉलेज रखने वाला नहीं था, बट सडनली पोएट इज़ टेलिंग कि मई मंथ का जो एंड था यानी समर के टाइम पे आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे। तभी उन्होंने देखा कि उनके आंगन में तो एक चेरी ट्री आ गया था रहने के लिए। इट वॉज़ वेरी स्मॉल, 5 months ओल्ड चाइल्ड, यानी 5 महीने हो गए, यानी अराउंड जनवरी में उन्होंने प्लांट किया होगा, मई में उनको 5 month हो गए, 5 महीने का छोटा बच्चा था। यानी पोएट इज टेलिंग चेरी ट्री एज अ स्मॉल चाइल्ड विच वॉज नाउ 5 years ओल्ड, लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड, goats ate leaves, the grass cutter scythe split it apart and a monsoon blight shivered the slender stem even so। अभी पोएट इज टेलिंग कि जो ये चेरी ट्री था बहुत लंबे लंबे ग्रास थे, उनके अंदर चला गया था, छुप गया था। वाइल्ड जो ये ग्रास था वो भी उसके अराउंड में था। गोट्स बकरियां जो है उसके पत्ते खा रही थी, और ग्रास कटर आके साइथ, मैंने दिखाया साइथ कैसे होता है, टूल जो ये लोग फार्मर लोग यूज़ करते हैं, तो ग्रास कटर ने वो साइड से आके वो काटा, स्प्लिट इट अपार्ट, उसको अलग कर दिया। एंड अ मॉनसून ब्लाइट यानी कॉजिंग डैमेज, बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ। शिविल्ड द स्लेंडर स्टेम, यानी जो चेरी ट्री की एकदम पतली सी, स्लेंडर यानी पतली सी, स्टेम यानी डंडी थी, वो शिविल्ड यानी वो ड्राई हो गई। इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच्ड 3 new shoots ग्रो। अभी आप देख रहे हो कि मानसून की वजह से उसको ये नुकसान हुआ, या फिर गोट्स उनके पत्ते खा गई, ग्रास कटर ने थोड़ा साइड घुमा दिया। इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज प्रॉब्लम्स पोएट इज सेइंग कि जब भी स्प्रिंग आया तो मैंने देखा वापस उसमें से नई शूट्स यानी नई ब्रांचेस ग्रो हो गई। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट इट आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट। अभी जो यंग ट्री था, कौन सा ट्री, चेरी ट्री, स्ट्रगल कर रहा था किसके लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। अपवर्ड थ्रस्ट यानी फोर्स, ऊपर ग्रो होने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उसको ऊपर बढ़ना था। और उसकी ब्रांचेस को बोला है आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट। फियर्स यानी एग्रेसिव, उसकी ब्रांचेस जो हैं एग्रेसिवली ग्रो हो रही थी, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, क्यों ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी उसकी ब्रांचेस, बिकॉज उनको लाइट एयर सन चाहिए ग्रो होने के लिए। इफ़ यू नो ट्रीज़ को लाइट एयर एंड सन चाहिए, तो ऊपर ग्रो हो रही थी। पानी तो जो प्लांट करते हैं, फार्मर्स हैं, जो भी हैं, तो वो लोग पानी नीचे से देते हैं, दे नीड वाटर ऑल्सो, बट वो अपने आप लाइट एयर सन के लिए ऊपर ऊपर ग्रो होने की कोशिश करती हैं। आई कुड ओनली वेट एज वन हु वॉच्ड वॉन्डरिंग वाइल्ड टाइम एंड द रेन मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन। पोएट इज सेइंग मैं क्या कर सकता था, मैं तो सिर्फ वेट ही कर रहा था
उसको देख रहा था, वॉच कर रहा था, कैसे टाइम जा रहा है, बारिश आ रही है, मिरेकल हो रहा है, और उसमें से पेन के साथ वो ग्रो हो रहा है. आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, स्पेंट अ सीजन इन कश्मीर, केम बैक थिनर रादर पुअर बट रिचर बाय चेरी ट्री एट माई डोर. अभी पोएट जो बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर वो कश्मीर चले गए. वहाँ से जब भी वो वापस आए, व्हेन ही केम बैक ही हैड बिकम थिन, मीन्स ही हैड लॉस्ट वेट, ही हैड बिकम पुअर. यानी जो दिखने में दुबला पतला सा, तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे मैं गरीब दिख रहा था, बट फिर भी रिच हो गया था. क्यों? क्योंकि मेरे दरवाजे पे चेरी ट्री आ गया था. चेरी ट्री के वजह से, यानी ही वांट्स टू से कि चेरी ट्री बहुत ही ग्रो हो गया था, तब तक बढ़ चुका था, डेंस हो चुका था, ब्रांचेस बढ़ चुकी थी, तो इसके लिए वो चेरी ट्री के वजह से वो रिच हो गए थे. 6 feet हाई माई ओन डार्क चेरी एंड आई कुड स्कैसली बिलीव इट अ बेरी. वो जो अभी ट्री था 6 feet का हो गया था, उसमें डार्क कलर की चेरीज़ आई थी, और मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि सच में उसमें बेरीज आ गई हैं. ripened and jeweled in the sun, hung from a branch, just one, and next year there were blossoms, small, pink, fragile, quick to fall at the merest breath, the sleepiest breeze. ripened यानी पकी हुई, ripe जिसको ready to eat जिसको बोल सकते हो. ripened थी, एकदम फूली हुई, भरी हुई, और जैसे सनलाइट में वो ज्वेल के जैसे, कीमती स्टोन के जैसे वो चमक रही थी. और जो है उनकी जो ब्रांचेस में से जस्ट हंग कर रही थी, लटक रही थी, चेरीज ब्रांचेस में से लटक रही थी. और जो था नेक्स्ट ईयर देयर वाज ब्लॉसम, स्मॉल ब्लॉसम्स यानी फ्लावर्स. उसके बाद जो अगले साल ने पोएट ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे जो फूल थे वो ब्लॉसम हो गए थे, खिल गए थे चेरी के ट्री में. बट वो जो फ्लावर्स थे पिंक कलर के, मैंने दिखाया अभी आपको पिक में कि वो पिंक कलर के बहुत ही फ्रेजाइल यानी बहुत डेलिकेट, बहुत जल्दी गिर जाते हैं. थोड़ी सी मेरिस्ट यानी स्लाइटेस्ट, ब्रेथ यानी थोड़ी सी हवा लगने पर भी, ये ब्रीज लगने पर भी वो क्या हो जाते हैं, उसके फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी डेलिकेट, वेरी फ्रेजाइल. आई ले ऑन द ग्रास एट ईज, लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू, ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फ्लू and flitted through the dappled green. dappled का मतलब होता है having dark और light patches. अभी poet is saying कि मैं ग्रास पे लेट गया था, चेरी ट्री के इधर जहाँ पे चेरी ट्री था वहाँ पे ग्रास पे नीचे पोएट लेट गए थे, और मैं ऊपर देख रहा था. थ्रू लीव्स एट दी ब्लू ब्लाइंड स्काई, मैं स्काई को देख रहा था, ब्लू स्काई जो था, बट कहाँ से देख रहा था, लीव्स के थ्रू में से, चेरी ट्री के लीव्स के थ्रू ऊपर स्काई को दिख रहा था. फिर ट्री में उसको फिंचेस दिखे. फिंचेस मैंने अभी पिक दिखाया आपको, दे आर बर्ड्स, तो उनको फिंचेस बर्ड्स दिखे, वो वहाँ पे ट्री पे फ्लाई कर रहे थे. फ्लिटिंग यानी फ्लाई करना. थ्रू द डैपल्ड ग्रीन यानी डार्क एंड लाइट पैचेस जो थे उस पे ट्री पे, वहाँ पे ग्रीनरी में से वो फिंचेस जो बर्ड हैं फ्लिट कर रहे थे, एक डंडी में से उड़ के दूसरे डंडी पे से बैठ रहे थे. while bees in an ecstasy drank of nectar from each bloom and the sun sank. अभी जो बीज थी वो खुश होके एक्साइटमेंट के साथ क्या कर रही थी, उसका जूस, नेक्टर जो थी वो फ्लावर्स में से ड्रिंक कर रहे थे, और सन डूब रहा था. अभी bees also I showed you in the picture how they drink nectar, so I hope not a problem in understanding. Swiftly and the stars turned in the sky. अभी धीरे धीरे क्या हो रहा था, सन सैंक यानी सन डूब रहा था धीरे धीरे, स्विफ्टली यानी स्लोली, माइल्डली, बट स्टार्स आ रहे थे स्काई में. सनसेट होगा तो नेचुरली स्टार्स विल बी देयर इन द स्काई. एंड मून मॉथ्स एंड सिंगिंग क्रिकेट्स एंड आई प्रेज नाइट एंड द स्टार्स एंड ट्री दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी. अभी मून मॉथ ऑल्सो आई शोड यू, रात हो गई थी तो मून मॉथ भी आए गए थे, और क्रिकेट्स जो रात को आते हैं, बर्ड्स वो भी सिंगिंग कर रहे थे ट्री में. सन डूब गया, स्काई में मून आ गया, मून मॉथ्स आ गए ट्री पे, और क्रिकेट्स आ गए ट्री पे. दिन पे क्या था, फिंचेस थे, बीज थी, पर रात को क्या आ गया था उधर ट्री पे, मून मॉथ और क्रिकेट्स आ गए थे. तो मैंने बहुत प्रेज़ किया यानी बहुत तारीफ़ किया नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री, नाइट के स्टार्स की, ट्री की,
दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि ये जो छोटा सा चेरी का ट्री है वो बड़ा हो गया है. इट इज़ ग्रोन बाय, मैंने उसको बड़ा किया है, मैंने इसको ग्रो किया है. जैसे अपने बच्चे को देख के खुशी होती है, छोटे से बड़ा किया, तो पोएट को भी ये चेरी ट्री को देख के बहुत खुशी हो रही थी. वो ग्रास पे लाए करके और ऊपर देख रहे थे थ्रू चेरी ट्री और खुश हो रहे थे कि ये चेरी ट्री मैंने ग्रो किया है. आई होप this poem you found it very interesting, very useful and easily understood. Okay, so now I will cover up figures of speech and appreciation of the poem. Now figures of speech, in this poem you have to give examples from the poem. Acha, let us start with this. A4 first, read the line, pink, fragile, quick to fall. अभी नाउ इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर, पिंक के बाद कॉमा, देन फ्रेजाइल के बाद कॉमा, क्विक टू फॉल, नोटिस द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन द लाइन. दे मूव फ्रॉम हेल्दी टू डेलिकेट. द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड क्लाइमैक्स, वेयर सक्सेसिव वर्ड्स, फ्रेजेज, सेंटेंसेज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस. अभी 2-3 वर्ड्स लिखे हैं बट उसको कैसे लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ती संख्या में, जैसे बढ़ते क्रमांक में. इम्पॉर्टेंस, जैसे मैथ्स में हम नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, बढ़ती संख्या में. यहाँ पे क्या क्या बढ़ना चाहिए, इम्पॉर्टेंस बढ़ना चाहिए, छोटे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करके. सो व्हेन थिंग्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड क्लाइमैक्स. हियर द चेरी ब्लॉसम्स टर्न्स पिंक, राइपन्स एंड इज रेडी टू बी पिक्ड. तो ये जो है फिगर ऑफ स्पीच इज क्लाइमैक्स. Okay, now what are the other figure of speech used in the poem? You have to give example of alliteration. Now what is alliteration? Where sound is repeated, any alphabet is repeated at the beginning of a 2 or 3 words in the same line. जैसे its arms in a fresh fierce lust. तो here if you see fresh, fierce, F sound is repeated. 2 word के beginning में F sound है. So this figure of speech is alliteration. Made a miracle from green growing pain. Now here if you see green growing, तो G sound is repeated in 2 words in the same line. Beginning का जो alphabet है ना वो same होना चाहिए, sound same होना चाहिए. So these 2 are examples of alliteration from the poem. Then you have to give example of antithesis from the poem. Now what is antithesis? Where opposite ideas are used, यानी opposite words, opposite ideas are used. तो it was very small, 5 months child lost in the tall grass running wild. Here if you see small, tall, these are 2 opposite words. Okay, opposite words are used in the same line. So such figure of speech is called antithesis. Personification. Now what is personification? When human quality is given to non-living things. कोई भी इंसान की क्वालिटी, जैसे हंसना, खाना, रोना, जो नॉन लिविंग को दी गई है, ऐसी कोई क्वालिटी जो ह्यूमन बीइंग करते हैं, तो देन फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. जैसे अ ट्री हैड कम टू स्टे, अभी ट्री रहने के लिए आया था, तो रहने का, स्टे का क्वालिटी क्या है, ह्यूमन बीइंग का, दैट इज गिवन टू ट्री. सो फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू figures of speech separately. I have explained in my videos, 2 videos you will find it on my YouTube. Figure of speech part 1, figure of speech part 1. So if you have forgotten or if you have not done figures of speech in school days, so I would request you to just see those videos, understand properly, and then it will become easier for you to identify the figure of speech from poem. If not, if any problem, you can put it in the comments box, I will help you. Okay, then next which we get it from poem is जो क्वेश्चन मिलता है पोएटिक डिवाइस में, एक आता है अप्रिसिएशन ऑफ पोएम, दूसरा आता है फिगर्स ऑफ स्पीच. तो फिगर्स ऑफ स्पीच इज ओवर. नाउ लेट मी टेल यू अप्रिसिएशन ऑफ पोएम. तो आई होप अप्रिसिएशन ऑफ पोएम you had done in 8th, 9th, 10th also. Again in 11th, 12th also you will have appreciation of poem. Now one thing let me tell you, you will ask, कभी हमको स्कूल में 8th में बोलते थे पॉइंट फॉर्म में लिखो, कभी बोलते थे पैराग्राफ फॉर्म में लिखो. तो हाउ डू वी हैव टू राइट? Appreciation is nothing but detailed analysis of poem. So now lower standard mein you had to write it in point form. So now you have to write the points, certain points will be given to you, but you don't have to write in one word, you have to write in
2-3 lines. Each point you have to explain in 2-3 lines. जैसे write the appreciation of the poem considering the following points about the poem, poet and title. So you have to tell about the poem, poet and title. जैसे the poem Cherry Tree is written by famous poet Ruskin Bond. It depicts the beauty of nature. It praises the nature, especially trees, giving example of cherry tree. Okay. Name of the poet we have written, name of the poem, poet we have written, and what is it about. Then you have to tell theme, summary, gist of the poem, yani central idea of the poem. So again I have given it in 2-3 points. The poem is based on wonders of nature. It describes the journey of cherry tree from a seed to fully grown tree. The poem also symbolizes the human lives through its struggle to grow and blossom. Then poetic style, language, poetic devices used in the poem. कि कौन सी स्टाइल में है. जैसे पोएम इज इन नैरेटिव फॉर्म, जैसे कोई स्टोरी बता रहा है ऐसे फॉर्म में है. पोएट हैज़ यूज लॉट ऑफ इमेजरी. आपको पोएम पढ़ने के बाद इमेजेस क्रिएट हो रहे थे, मैंने आपको इमेजेस भी दिखाए. तो जब भी हम पोएम पढ़ रहे थे इमेजेस क्रिएट हो रहे थे, यानी लॉट ऑफ इमेजरी इज यूज्ड यूजिंग वेरियस कलर्स टू डिस्क्राइब थिंग्स अराउंड इन द नेचर. डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, पर्सोनिफिकेशन एड टू द ब्यूटी ऑफ द पोएम. दिखाया मैंने ये फिगर्स ऑफ स्पीच भी यूज़ की रही है. पोएटिक डिवाइस में आता है फिगर्स ऑफ स्पीच. या स्टाइल कैसी थी, नरेटिव थी. कभी हम लिखते हैं इनकरेजिंग थी, कभी लिखते हैं रिफ्लेक्टिव थी, कभी लिखते हैं सॉफ्ट थी, लाइक दिस. स्पेशल फीचर और नॉवेल्टीज़ और फोकसिंग एलिमेंट्स. अभी इट इज़ अ नैरेटिव पोएम, फोकस्ड एंड नेचुरल अप्रोच टुवर्ड्स ब्यूटीफुल ट्रीज अराउंड अस. बेसिकली क्या है, ट्रीज़ के बारे में कि इनमें क्या ब्यूटी है, वो उसकी खास बात है जो ये पोएम में बताई गई. And now what is the message or values or morals in the poem? Poet uses cherry tree as a symbol and metaphor to our lives. He gives us message to struggle, grow and give joy to everyone like tree. जैसे ट्री सबको फ्रूट देते हैं, छाँव देते हैं, say always give to others. So we also should keep giving to others. Then last, your opinion about the poem. I like this poem as it inspires us to love and care nature. The way things are depicted in poem are beautiful. See, now these are the points which you have to cover up in appreciation of poem. Only thing is, you don't have to write one word, but you have to write at least 2-3 lines for each point explaining them. So this is how appreciation of poem का format आपको 11th 12th में follow करना है. So students, I hope you liked this video. Thank you.